Good morning, students. I hope you will be safe. Everybody know about the epidemic of coronavirus. So stay home and stay safe. But don't stop your study. So now we start today's session, and the topic of this session is basic of ICT. So now our point is ICT and its impact. So firstly we have to discuss about the ICT. ICT होता क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देन सो ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसका मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, एंड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये दोनों का कंबाइंड रूप होता है. So firstly we have to just discuss about the information technology and communication technology. ये दोनों होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे. So into the information technology there is a hardware, software, storage, audio visual system and internet. And the same thing is in communication technology. There is a telephone line, wireless system, etc. So firstly ICT introduced by academics in 1980s, बट इट गेंड पॉपुलरिटी सिंस 1990s. 1990 में ये कम्प्लीटली मार्केट में पॉपुलर हो गया, लोग इसके बारे में जानने लगे कि आईसीटी है क्या. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी. रोल और इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे पर्सनल लाइफ में एंड डेली लाइफ में, हमारे वर्किंग प्रोफाइल में, हमारे वर्किंग लाइफ्स में, प्रोफेशनल लाइफ में. इस आईसीटी का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग. सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पर्सनल लाइफ. सो इन अ पर्सनल लाइफ देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ यूज ऑफ आईसीटी लाइक आवर डेली कोर्स, our in entertainment options. We have to entertainment through the ICT operating machines, modern machines, using internet, our connectivity, our shopping styles, using connectivity software like video conferencing, audio conferencing, etc., using various types of social media, etc., and many more. There are a lot of uses of ICT in our daily life. This is some popular topics we have to discuss into this video. And another one is our वर्किंग लाइफ्स. हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं. तो सब कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा है. So the first one is the decision making capability. Through the ICT we have to develop our decision making capacity through the we have to see a different types of videos into the internet. They have a capacity when we see that type of video, then we have a capacity to develop our decision making capacity. Data availability. डाटा अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि हमें ईजिली कहीं से भी कुछ भी डाटा चाहें तो वो ईजिली हमारे पास अवेलेबल होता है. रीच टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ ईजी नाउ डेज. द कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ अ वेरी हाई, सो वी हैव टू जस्ट reach any of the corner of the world in a very easy manner. So now the next point is better connectivity of business to other business and clients. Better connectivity of business. Now so this one is a connectivity. That means what? Connectivity, that means we have to connect it from one place to the another place. So it is the beneficial for the business. business के लिए बहुत अच्छा होता है कि लोग यहाँ से बैठे बैठे ऑल ओवर होल वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी काम चल रहा है तो वो यहाँ से बैठे बैठे उस काम को ऑपरेट कर सकते हैं, उसे यहीं से बैठे बैठे वहाँ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इट इज़ ईजी टू कनेक्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. इट इज़ जस्ट पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट. इंटरनेट के थोड़ा ये इंटरनेट के द्वारा ही ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो पाया. नाउ द अनदर वन इज़ अ सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल. इसके थ्रू क्या होता है, हम लोग मेल को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं. ऑफिशियल मेल्स जो भी आते हैं उसको हम लोग यहाँ से हैंडल कर सकते हैं. नाउ द अनदर पॉइंट, यूजिंग कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग एंड मैसेजिंग. We have to just discuss into our personal lives. It is also used, and the working profile, it is also used for our business purpose. So it is just used for the video conferencing, it is for chatting, messaging. We have to just see this video. It is just beneficial, it is just a part of the ICT. So the another one, using internet for searching.
when we search something, when we just search some knowledgeable things, search some when we shop something, that time we have to search through the internet. So it is easy to searching through the internet, and ICT has an important role to use the internet services and many more, lots of other facility that are not discussed into the video. So a lot of more facility provided by the ICT. I think that the ICT has a मेनी रोल, उसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारे लाइफ में. उसके बिना आज के डेट में बहुत सारे काम जो हैं पॉसिबल नहीं होते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर आवर डेली एंड डेली लाइफ्स एंड आवर वर्किंग लाइफ्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ICT टूल्स. अब ICT टूल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस ICT टूल्स में आती है, सो इसके बारे में हम लोग देखते हैं. सो फर्स्ट इट्स अ कंप्यूटर एंड लैपटॉप. सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस that have a specific processor and that work as per programs and the software loaded on them. ये जो काम करता है, ये जो कंप्यूटर और लैपटॉप है, ये ICT का एक बहुत बड़ा टूल्स है. इसके थ्रू हम लोग अपने डेली लाइफ के बहुत सारे वर्क करते हैं जो कि ICT से रिलेटेड है. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि प्रोसेसर लगा होता है और उस प्रोसेसर के माध्यम से हम अपने कामों को निपटाते हैं. हम उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं. हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्टिंग डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं या लैपटॉप को इंस्ट्रक्ट करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग अपने काम को परफॉर्म कर हमें वो रिजल्ट देता है. द सेकेंड वन इज़ अ स्मार्टफोन एंड टैबलेट. नाउअडेज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस ICT. सो हाउ ICT में ये कैसे रोल बहुत ज़्यादा निभाता है. आज के डेट में हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन है या टैबलेट है. सो दिस स्मार्टफोन is easy to handle and easy to carry from one place to the another place, and we can just call someone through this smartphone or the tablets also. Just a tablet is a say about it's a cousin of स्मार्टफोन. इसको स्मार्टफोन का कज़न बोला जाता है बिकॉज द मोस्ट ऑफ द फीचर्स both the devices have same features almost. We can call to someone through the mobile or the tablets also. हम लोग दोनों के थ्रू ही किसी को भी कॉल कर सकते हैं, नेट सर्च कर सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इन दोनों डिवाइसेस का भी बहुत बड़ा रोल है ICT में. पहले की बात करें तो रेडियो और टीवी. रेडियो बहुत पुरानी चीज़ है जो आज के डेट में बहुत कम हो गई है. टीवी आज के डेट में हर जगह है. सो इट्स ओल्डेस्ट बट जनरली वी हैव टू यूज्ड फॉर दैट पर्पस to complete the ICT. This is the best example in before some years. It's a very big example for the ICT. ICT के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल. अगर पहले की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइस माना जाता था किसी भी न्यूज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए या बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए. इसका बहुत ही बड़ा रोल था. It has a audio visual technology, so that's why it is a very best thing. Now the next one is a internet and mail. So what about the internet? Internet refers to the worldwide network or interconnected network. Internet क्या होता है? एक worldwide network है और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. यहाँ से हम लोग वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड होते हैं, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी होती है. सो हम लोग कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ें ईजी वे में यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरे जगह ईजीली हम लोग शेयर कर सकते हैं. एंड ईमेल इज़ द बेस्ट थिंग टू सेंड सम डेटा और videos or your documents or a file, etc. a lot of thing that we can share through the emails from one place to another place. एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ईमेल के माध्यम से बड़े ही आसानी से फाइल्स को, डेटाज को, वीडियोज़ को हम लोग यहाँ से वहाँ ईजीली शेयर कर सकते हैं. सो दीज आर सम टूल्स टू परफॉर्म द ICT. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ मोबाइल एप्लीकेशन. द मोबाइल एप्लीकेशन क्या क्या हैं, उस मोबाइल एप्लीकेशन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसको बाइफर्केट करके हमने यहाँ इस वीडियो में दिखाया है. सो जस्ट सी दिस वीडियो. द फर्स्ट वन इज़ अ लाइफस्टाइल मोबाइल एप्लीकेशन. there are some category, there are different category of mobile applications.
So the first one is a lifestyle mobile applications. A lifestyle application is one of that accelerates or support the individual facts that define our lifestyle, such as fitness, food, music, travel. So in the lifestyle, it's just depends upon your the word lifestyle, our lifestyle. That means the this type of app depends upon our lifestyles, like what we eat, what we do, what we listen, where we can travel. So these types of app depends on that particular thing. Like there are some examples like Ola. We have to travel through Ola. It's a traveling app. Noodles company, this is the food app. We can just order, or we can just go to that place and we can just eat food. There is some fitnesses also. There is some music. MTV, it's a musical app. Make My Trip, it's a traveling app. So these types of app perform the our lifestyle activity. What our lifestyle is, these apps, through these apps we can just perform for that particular operations. Now the next one is a social media app. So what about the social media? All of you know that what is social media. In this time, it helps you to connect with you online, with your online social circle spread across the world. That means you can just connect with your friends, family from anywhere, from one place to another place. It is very easy to connect with them. So you all know about these types of app. So now this one is a Facebook, Twitter, Google, Hangout, WhatsApp, Pinterest. So these are some best social medias app, and we all know about that app. Also, some of the students use these apps for performing the connectivity, and they can connect with their friends or the family. Now the next one is utility mobile apps. So what about the utility mobiles app? Utility क्या होता है? इससे पहले हमने सोशल मीडिया देखा, सारे लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं आज के डेट में, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, और आज हम एक दूसरे से अगर इंटरेक्ट हो रहे हैं, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया एप्स. सो ये सोशल मीडिया का ही देन है जो आज हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और एक दूसरे को हम लोग यहाँ से देख भी पा रहे हैं या सुन भी पा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द ICT. ये भी ICT का बेनिफिट है, और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग कनेक्टेड हैं. सो नाउ द नेक्स्ट वन, यूटिलिटी मोबाइल ऐप. यूटिलिटी मोबाइल ऐप के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सो दिस आर द utility are the types of mobile applications that provide utility function such as reminder, weather information. Utility function, what about the utility function? Utility function होता क्या है जो कि हम परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है जो बाहरी जैसे न्यूज़ हो गए, वेदर इन्फॉर्मेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कैलकुलेटर्स हो गए, जो हमारे मोबाइल्स के यूटिलिटी ऐप्स जो वहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, उसे हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हमारे मोबाइल के एक पार्ट हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. सो उसे हम लोग यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं. लाइक कैलकुलेटर, एग्जांपल कैलकुलेटर, वेदर वर्क फॉर वेदर इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेटर फॉर द just calculating purpose. So these are the apps to perform some utility mobile apps. I hope कि सबको समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे, या तो व्हाट्सएप नंबर पे जो सबके पास है, मैसेज करके या कॉल करके, या तो कमेंट बॉक्स में. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ गेम्स entertainment app. I think you all know about that, my dear students. You know games and entertainment apps because all of you used for that apps, like the most one PUBG, League Legends. So these are the some games app, and these apps to entertain yourself, and most of the person use the PUBG is the best and most popular games in nowadays. Most of the students play that games. So now ज़्यादा नहीं खेलना है. So no problem. So these are the apps is used for gaming purpose, for the entertaining purpose. Now the next one is a productivity app.
प्रोडक्टिविटी ऐप क्या होता है? इट जनरली हेल्प्स यूजर टू कंप्लीट देयर स्पेसिफिक टास्क इन अ वेरी क्विकली मैनर, इन अ वेरी इफिशिएंटली मैनर। सो जो ये प्रोडक्टिविटी ऐप्स है वो यूज़र को अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से वे अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। सो बहुत सारे ऐप्स इसके एग्जांपल हैं, दो वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स इनटू दिस वीडियो। नाउ दिस वन इज ऑफिस। यू ऑल नो अबाउट द ऑफिस। ऑफिस is mainly used to create the documents and for the calculation purpose and for the presentation there are a lots of things, a lots of content like office is a generally a package, and the package have a different types of component like MS Word, like Excel, Access, PowerPoint, Outlook. So these are some different types of components. So both the components combine and the name is Office. The Microsoft developed the Office. So it's a productivity app when we just create some documents, when we create some calculative data, when we create some presentation for the designing purpose, when we just create the database, when we just use the Outlook, we use the mails. So through the Office app, through the Office software, we can perform these types of productivity, we can perform these types of actions। जो हम काम करते हैं हमारे डेली लाइफ के, ये सारे जो काम हैं ये इसके थ्रू हमारे बहुत सारे काम पॉसिबल हो चुके हैं। भीम, यू नो अबाउट द यूपीआई। यूपीआई के बारे में आज के डेट में सब लोग जानते हैं। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द यूपीआई के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। सो यू नो द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। दैट मीन्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। So through the UPI, we all know about that. We just send the money and receive the money through these apps. Nowadays, these apps are very popular, and this time it's very popular because we have to just receive and send the money through these apps. Now the next thing, news or information apps. News or information app क्या होता है? So these apps helps to supply their users with news and information in an easy to understand layout। ये क्या करता है कि यूज़र्स को न्यूज़ देता है, इंफॉर्मेशंस देता है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देता है। दैट मीन्स कि वी जस्ट गेन अबाउट द इंफॉर्मेशंस, वी जस्ट गेन अबाउट द न्यूज़ इन ऑल ओवर वर्ल्ड। So these apps is used for that purpose, like NBC, it's a news channel, a lot of news channel, Aaj Tak, BBC News, so etc. There is a lot of news channels. They give the information, we get the information from those channels. There are some Flipboard. This is also information technology channel. So through the Flipboard we have to just get the informations like what happens in our world, what happens in our environment। so कहाँ कहाँ क्या हो रहा है हम उसके बारे में, अपने अगल बगल के बारे में, दुनिया के किसी भी कोने के बारे में हम लोग न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, दोनों लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। Now we discuss about the smartphone versus tablet and versus laptop। यानी तीनों के बारे में क्या डिफरेंसेस हैं, तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कौन कितना इजी है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आउट हैं, बहुत सारे पैटर्न पे इसे देखा गया है, कौन कितना इजी है, कितना बेनिफिशियल है लोगों के लिए, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, कौन वर्क के हिसाब से, कौन पोर्टेबिलिटी के हिसाब से, यानी किस पर्पज़ से कौन सा अच्छा होता है। यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। हम लोग देखते हैं एक एक करके, हम लोग वन बाय वन सबको देखते हैं। सो देयर इज़ अ टेबल that denoted there is a one smartphone table, tablet table and the laptop table। we have to just about according to their just क्या बोल सकते हैं उसे, like ability। so we have to just discuss about that purpose। so first one, portability। portability क्या होता है? पोर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप में क्या डिफरेंसेस है
हम यहाँ पे वो देखेंगे। जनरली ये डिफरेंसेस है, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट वन, पोर्टेबिलिटी। स्मार्टफोन्स आर वेरी लाइट एंड वेरी इजी टू कैरी। स्मार्टफोन क्या होता है? इट्स अ वेरी लाइट वेट, इट्स अ लाइट वेट एंड इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह हम लोग आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है। नाउ द टैबलेट। So tablets are thin and light. It's also thin and light. It's just as per the smartphones. Just we have to discuss about in the previous slides, that is tablet is also known as the cousin of the smartphone. ये smartphone का क्या है? cousin कहलाता है. So the both the features will be same. Tablet is much higher than the smartphone, but the features will be almost same. सो टैबलेट्स आर थिन एंड लाइट बट हैवियर दैन अ स्मार्टफोन। थोड़ा सा ये स्मार्टफोन से हैवियर होता है, बड़ा होता है, बट स्टिल एंड ईजी टू कैरी। ये भी क्या होता है, इसे भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी से हम लोग ले जा सकते हैं। सो मैंने पहले भी डिस्कस किया, बोथ आर द ऑलमोस्ट सेम। सो द नेक्स्ट वन, लैपटॉप। पोर्टेबिलिटी के हिसाब से, यानी कि पोर्टेबिलिटी दैट मीन्स इट्स अ कैरी टू वन प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। सो लैपटॉप के बारे में बात करें तो लैपटॉप आर मच हैवियर एंड इट्स टेक एफर्ट्स टू कैरी देम। मतलब क्या होता है कि लैपटॉप जो होता है इन स्मार्टफोन और टैबलेट से थोड़ा भारी होता है, थोड़ा क्या बहुत भारी होता है, ठीक है। उसकी वजह से हम लोग, भारी भी होता है और बड़ा भी होता है, इसकी वजह से हमें इसे कैरी करना आसान है बट थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है इसे कैरी करने के लिए। सो इन द अकॉर्डिंग टू द पोर्टेबिलिटी इट इज़ जस्ट it can take we can take efforts to carry from one place to another place. So the next one, functionality. फंक्शनलिटी के हिसाब से बात करते हैं। फंक्शनलिटी मतलब फंक्शन किसका अच्छा होता है, कौन बहुत इजी है, ठीक है, फंक्शनिंग में काम करना किसके थ्रू बहुत ज़्यादा आसान है। सो हम लोग देखते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। सो स्मार्टफोन हैव स्मॉल स्क्रीन साइज। इसका क्या होता है, स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा होता है। सो it is difficult to work some heavy work through the smartphone, बहुत टफ होता है। एंड tablets have larger display than the smartphones. tablets का क्या होता है, वो स्मार्टफोन से उसका जो स्क्रीन का साइज़ होता है वो बड़ा होता है। मैंने पहले भी बताया, द बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, ओनली द डिफरेंसेस बिटवीन द स्क्रीन साइज। बट द लैपटॉप हैव बिगर डिस्प्ले दैन द टैबलेट्स। लैपटॉप के पास क्या होता है, वो उसका स्क्रीन साइज़ बड़ा होता है, पहले भी डिस्कस हुआ, लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है। सो जो फंक्शंस होते हैं ये इसमें काम करना हमारे लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि स्क्रीन बड़ा होता है तो टेक्स्ट बड़े दिखते हैं और उसके थ्रू हमारा काम करना इजी होता है। इसमें हमारे इनपुट यूनिट जिसे बोल सकते हैं आप, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है, तो थोड़ा सा काम करने में फंक्शनलिटी के हिसाब से ईजी है। Now the next one is a difficulty in working. अब डिफ़िकल्टी मतलब काम करने में कितनी ज़्यादा परेशानी आती है किस चीज़ में, हम लोग उसके बारे में देखें। सो स्मार्टफोन इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर इनहैंस विथ अ सेल्यूलर टेलीफोनी। मतलब इसके थ्रू क्या होता है, काम करना क्या है, बहुत आसान है। हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट में कहीं भी खड़े हो, अगर कोई भी काम हुआ, मेल सेंड करना है, मेल रिसीव करना है, फ़ोटो भेजना है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा अगर करना है, अगर सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो वी कैन यूज़ इन अ ईजी मैनर फ्रॉम एनीवेयर। अगर हम कहीं भी हैं तो हम लोग बहुत आसानी से स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए कोई स्पेशल प्लेस की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें किसी को कॉल करना है तो इसके लिए भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी को भी कॉल भी कर सकते हैं और मोबाइल को या कोई भी फंक्शंस को ईजी वे में यूज़ भी कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन, टैबलेट। सो टैबलेट ऑफर्स बेटर डिस्प्ले विथ स्मार्टफोन प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता है कि टैबलेट का जो होता है, मैंने पहले बताया, स्मार्टफोन से बड़ी स्क्रीन साइज होती है, डिस्प्ले होती है, एंड द टैबलेट इज़ अ ईजी टू जस्ट टर्न ऑन और यूज़ एनी इन्वायरमेंट। मतलब कि इसे भी हम लोग आराम से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसका स्क्रीन साइज जो होता है वो स्मार्टफोन से बड़ा होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है हमारे काम के हिसाब से। बहुत ही इजी वे में हम लोग बहुत सारे काम को, हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट में, हम लोग कहीं भी हैं तो उसे आसानी से निपटा सकते हैं।
बट लैपटॉप्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक प्लेस। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए स्पेशल प्लेस की ज़रूरत होती है। स्पेशल प्लेस दैट मीन्स क्या, स्पेशल प्लेस दैट मीन्स लैपटॉप हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लैपटॉप यूज़ करना बहुत टफ हो जाता है या नहीं हो जाता। जस्ट एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और या कार में ट्रेवल कर रहे हो और स्मूथली कार बहुत स्पीड में चल रही है, तो आई थिंक कि यू हैव अ ट्रबल टू जस्ट डू सम वर्क थ्रू द लैपटॉप। वहाँ पे लैपटॉप में काम करना बहुत टफ होगा, तो इसके लिए लैपटॉप को हम लोग इजी बोल सकते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ ऐसे जगह होती है जैसे स्मार्टफोन जहाँ इजी वे में हम काम कर सकते हैं, वहाँ पे लैपटॉप से इजी वे में नहीं काम कर सकते हैं। लैपटॉप को कहीं भी रखने का एक स्पेस चाहिए, रखने के लिए जगह चाहिए, इसलिए उसे बोला जाता है कि लैपटॉप को यूज़ करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस की ज़रूरत होती है जहाँ उसे रख के हम लोग अपने काम को कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट term is battery life. Battery life, I think all of you know about the battery life. So smartphone have a small battery life. स्मार्टफोन के क्या पास क्या होता है, इट्स अ वेरी लो बैटरी लाइफ, इसके पास बैटरी लाइफ बहुत कम होता है। नाउ द टैबलेट, मोस्ट टैबलेट हैव बैटरी लाइफ दैट इज़ फार बेटर दैन द लैपटॉप्स। टैबलेट के पास जो बैटरी लाइफ होता है वो लैपटॉप से बहुत अच्छा होता है, और स्मार्टफोन का जो बैटरी लाइफ होता है वो टैबलेट से अच्छा होता है। बैटरी लाइफ इसका कमज़ोर है, बट इट इज़ अ वेरी क्या बोल सकते हैं इसको, वेरी बिग साइज, वेरी बिग कैपेसिटी rather than the tablet. Now the laptop far better on power availability. लैपटॉप क्या होता है, ये फार बेटर होता है, इसके लिए पावर अवेलेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। एंड एज बोथ बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, बैटरी से भी चल सकता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकता है, यानी कि इसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी है रादर दैन स्मार्टफोन एंड द टैबलेट, बिकॉज उसके साथ दोनों कनेक्टिविटी है। आप पावर के भी थ्रू उसके बैटरी को यूज़ कर सकते हैं, और उसकी अपनी बैटरी कैपेसिटी भी होती है, उसकी अपनी बैटरी लाइफ भी होती है। अब बात करें कि अगर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बैटरी लाइफ सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन की अच्छी होती है, उससे थोड़ी सी कम टैबलेट की, और सबसे कम लैपटॉप की। सो बैटरी लाइफ के हिसाब से इसे एज़ पर शेड्यूल, एज़ पर ये बोला जाता है, एज़ पर ट्रैक जो है इस तरह से दिया जा रहा है, फर्स्ट स्मार्टफोन, दैन द टैबलेट एंड दैन द लैपटॉप। Now the next one is a flexibility. Flexibility क्या होता है? Flexibility that means it's a flexible for doing a different types of work. ये very बहुत ज़्यादा flexible होता है, बहुत easy to handle होता है। So the smartphone is maximum flexible. स्मार्टफोन को कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, उसे आराम से easy manner में आप उसे यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आनी है उसके लिए। A tablet sits somewhere between the smartphone and the laptop is इन मोस्ट एरिया। टैबलेट भी जो होता है वो स्मार्टफोन के इक्विवेलेंट ही होता है, और स्मार्टफोन की तरह हम लोग उसे भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं, लैपटॉप को नहीं कर सकते। लैपटॉप ऑफर्स अ लेस फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू अ स्मार्टफोन एंड द टैबलेट। लैपटॉप में क्या होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है जो हम आसानी से इसे, ये कि जैसे हमने इससे पहले की स्लाइड पहले देखा, हमने पहले के फंक्शंस में कि हम लोग इसे आसानी से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, बट लैपटॉप को हम लोग कहीं भी आसानी से यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दे एज पर कंपेयर्ड इट्स अ वेरी लेस फ्लेक्सिबल rather than the smartphone and or the tablet also. Now the next one, productivity. अब productivity के बारे में बात करें तो इट्स अ प्रोडक्टिविटी इज़ लिमिटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेड बैटरी लाइफ एंड स्मॉलर स्क्रीन साइज। इसका जो स्क्रीन साइज होता है वो लोअर होता है, बैटरी लाइफ भी थोड़ी लो होती है, लैपटॉप के हिसाब से अच्छी होती है, बट इसकी बैटरी लाइफ लो होती है। और सो दैट्स वाई हम लोग अगर कोई भी काम कर रहे होते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट ही बनाना है, ठीक है, कोई बहुत टिपिकल काम है, तो वो स्मार्टफोन से करना थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे प्रोडक्टिविटी हमने पहले की स्लाइड में बात किया, प्रोडक्टिविटी ऐप लाइक MS Word, Excel, PowerPoint. So when we just create these type of documents, so it's a very tough to create through the smartphones. उसके थ्रू अब थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है, क्रिएट हो जाता है बट परेशानी ज़्यादा होती है, टाइम टेकन होता है।
बट लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप ऑफर्स बेटर प्रोडक्टिविटी देन द स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन के हिसाब से बेटर प्रोडक्टिविटी देता है। वाई? बिकॉज ऑफ लार्ज स्क्रीन, उसके पास जो स्क्रीन साइज होता है उसका बड़ा होता है। सो दैट्स वाई वी कैन परफॉर्म स्मूथली फॉर दीज टाइप ऑफ फॉर दोज टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी एप्स इनटू द टैबलेट। सॉरी, टैबलेट में हम लोग आसानी से वो सारे जो ऐप्स हैं जिसको प्रोडक्टिविटी ऐप बोल सकते हैं आप, सो वो सारे ऐप्स को हम लोग बहुत ही आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है रादर दैन द स्मार्टफोन के मुकाबले टैबलेट में हमें वो सारी चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। नाउ द लैपटॉप ऑफर्स द बेस्ट प्रोडक्टिविटी अमॉन्ग दीज एज दे हैव बेटर पावर ऑप्शन, लार्ज स्क्रीन। दैट मीन्स हमने पहले डिस्कस किया, लैपटॉप के पास हर चीज़ होता है, इट्स हैड अ power capacity, that means कि it gains the it charge by the electricity, it has a large screen। सो इसके पास सारी चीज़ें अच्छी होती है। यानी कि अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उस हिसाब से लैपटॉप सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें हम लोग आसानी से डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग कर ही सकते हैं, लाइक मेल सेंड करना, मेल चेक करना। सो अगर बात करें प्रोडक्टिविटी की तो या डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की या फ़ोटो को एडिट करने की, सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग वी आर वेरी मच ईजी टू यूज़ थ्रू द लैपटॉप। हम लोग लैपटॉप के थ्रू हम लोग बहुत आसानी से उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आनी है। तो ये तो थे हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप में क्या डिफरेंसेस है। कभी कभी देखोगे एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे आ जाते हैं, तो जैसे ओलंपियाड हो गया, कुछ एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंसेस के बारे में कभी कभी चर्चा हो जाती है, जैसे स्मार्टफोन टैबलेट में क्या डिफरेंसेस है, टैबलेट लैपटॉप में क्या डिफरेंसेस है। तो ये जो कंपैरिजनल चीज़ें हैं वो आपको उन सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर कभी भी आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज़ द जस्ट डिफरेंसेस बिटवीन द स्मार्टफोन, टैबलेट एंड लैपटॉप, बोथ आर द ऑलमोस्ट दीज आर द सेम फीचर्स। So you have to just say for that to that person that this is the differences between the smartphone, tablet and the laptops. So now the next topic is basic of computer system. So before this topic we have to just discuss about the some ICT tools, their apps. So in this slide we have to discuss about the computer system. Computer system क्या होता है, we just discuss about the computer system. So first we just discuss about what is computer. Computer होता क्या है, we all know about that. This is a electronic device and we can perform a variety of operations according to the set of instruction. दैट मीन्स कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू बहुत सारे काम को परफॉर्म कर सकता है। सो नाउ देयर आर सम मेन फंक्शंस, देयर आर सम मेन पार्ट्स, वी हैव टू जस्ट डिस्कस कि क्या क्या होते हैं उसके मेन पार्ट। सो देयर इज़ अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये सारे उसके कुछ पार्ट्स हो गए। अगर बात करें कंप्यूटर सिस्टम की तो उसके सिस्टम के ये सारे कुछ पार्ट्स हैं। सो हार्डवेयर, इट्स अ फिजिकल कंपोनेंट दैट वी कैन फील एंड टच। क्योंकि हार्डवेयर क्या होता है, इसे हम लोग फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू और नॉट। उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वी कैन जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर विल वर्क। नाउ डेटा, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर डेटा। जो अनप्रोसेस्ड हो गए हैं, जो जिसमें प्रोसेस नहीं हुआ है, वो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स होते हैं उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन, इट रेफर्स द प्रोसेस डेटा दैट इज़ अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि इट हैज़ अ मीनिंगफुल। डेटा का मतलब था अनप्रोसेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो वो भी डेटा कहलाता है। बट इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स इट हैज़ अ प्रॉपर मीनिंग, इसके पास ये प्रॉपर मीनिंग होती है, वही इन्फॉर्मेशन कहलाता है। जिसके पास प्रॉपर मीनिंग होती है वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है, और जो अनप्रॉपर है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, दैट इज़ अ डेटा। नाउ द IPO साइकिल। IPO साइकिल क्या होता है? आई होप आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस साइकिल बिकॉज इट्स वी जस्ट रीड इन द previous classes for the IPO cycle. So IPO, that means input, process and output cycle. The whole computer system work on the IPO cycle, and I think most of the
daily life features. In our daily life, we can this type of cycle works on our daily life also, but we discuss about in the computer system. So firstly we discuss through this system. So there is a input, process and output. So in a computer system there is a three type of main devices, like input device, process device and the output device. So our system will work upon that IPO cycle. How? We can just know about that IPO cycle. So IPO, first input. Input का मतलब होता है we can just give the instruction and command to the processor, to the process, and the process takes the input and just process according to their instruction. And output, that means after processing it will give the result. So जब भी हम कोई अगर सिस्टम को कुछ कहते हैं तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, लाइक अ कीबोर्ड, माउस, इट्स इनपुट डिवाइसेस. थ्रू द इनपुट डिवाइस वी कैन जस्ट give the instruction to our computer and the instruction accepted by the CPU. CPU होता है जो हमारे इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है एंड दे कैन प्रोसेस, और उसको वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, और जो मॉनिटर है वो उस प्रोसेस डेटा को रिजल्ट के रूप में हमें दिखाता है. अब हमारी डेली लाइफ की बात करें तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो भी हमारे इस IPO साइकिल पे काम करती है. जैसे अब बात करें कि हमें घर में सबकी मम्मी हैं चाय बनाती हैं, एक बात करते हैं, तो वो जो टी मेकिंग है, चाय जो बनाने की प्रक्रिया है, उस चाय बनाने में क्या होता है, इट हैज़ सम इनपुट द प्रोसेस एंड द आउटपुट ऑल्सो. सो उस चाय बनाने में और इनपुट क्या होता है, इनपुट लाइक देर आर सम मिनरल्स लाइक वाटर, मिल्क, sugar, tea. So these are some inputs. When we process the tea, these inputs are beneficial, these inputs are required. If the inputs are not available, we cannot process the things, we cannot make the tea. So the input is very required for the processing. Now इसके बाद क्या होता है, हम लोग उसे मिक्स करते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं. दैट मिक्सिंग एंड द बॉइलिंग, दीज प्रोसेस इज़ फॉर प्रोसेसिंग. दैट मीन्स ये चाय बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. एंड आफ्टर मेकिंग अ टी, जब वो फाइनली बन जाता है तो वी कैन जस्ट टेक टी, दैट इज़ अ आउटपुट. वो फाइनली जब बन के तैयार हो गया तो वो क्या है, वो आउटपुट है, वो हमारा चाय बन के तैयार है. सो दीज आर आउटपुट. सो दीज आर द जस्ट एग्जाम्पल्स वी हैव टू जस्ट डिस्कस एज एग्जाम्पल. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ IPO cycle. Now the functioning of computer, these are some functional components of computer. We have to just discuss input to giving the command to the CPU. Processing, that means it takes the input and it processes according to the input, according to the command given by the user or the input devices. Output, it just display the result after processing the data. And the next one is memory, the new one, memory. So what is the use of memory? Before in the processing of these things, इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो होता है उस दौरान जो होता है हमें कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो हमें सेव करने की ज़रूरत पड़ती है. सो जनरली मेमोरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्पस, दैट मीन्स टू स्टोरिंग द डेटा. वो जो डेटा को हम स्टोर करते हैं, मेमोरी यूनिट जो है वो उस डेटा को स्टोर करने का काम करती है. उस मेमोरी यूनिट में हमारे डेटा स्टोर होते हैं एंड वी कैन यूज़ दैट डेटा इन from after just we have to use that data after 10 years, after 2 years, it will be safe into the memory disk. वो memory disk में क्या होता है, एकदम परमानेंटली सेव होता है. हम लोग उसमें परमानेंटली डेटा को सेव कर सकते हैं जो कि हम लॉन्ग लाइफ उसे यूज कर सकें. नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. देयर आर सम स्ट्रेंथेज एंड द वीकनेसेस ऑफ द कंप्यूटर. सो वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट दैट स्ट्रेंथेज एंड द वीकनेसेस. So speed, it is a strength of computer, and computer is much faster than the human beings. It has a high storage capacity to store the data in a very small spaces. Accuracy, it can perform all the calculation accurately. ये क्या करता है, एकदम accurate calculation perform करता है, वो गलत calculations नहीं दे सकता. Reliability,
इट इज़ अ मोर रिलायबल दैन द ह्यूमन, दैट मीन्स कि ये कभी थकता नहीं है, ये कभी बुरा नहीं मानता है. इट हैज़ अ मच मोर कैपेबिलिटी दैन द ह्यूमन. सो वर्सटाइल, कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क इन अ वन टाइम. ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा काम को एक साथ परफॉर्म कर सकता है और उससे कोई भी परेशानी, कोई भी थकान नहीं महसूस होती है. नाउ द वीकनेसेस ऑफ द कंप्यूटर, इसके कुछ वीकनेसेस भी हैं, वो देख लें हम लोग. सो इट्स अ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. इसके पास क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है. सो कंप्यूटर्स कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ऑन. वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता किसी भी चीज़ के बारे में. वो ओनली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है. व्हेन वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, दे कैन जस्ट गिव द रिजल्ट. विदाउट इंस्ट्रक्शन दे कैन नॉट वर्क. सो ज़ीरो IQ, इसका क्या होता है, IQ लेवल ज़ीरो होता है. ये बिना यूज़र के इंस्ट्रक्शन के काम नहीं करता है, मैंने पहले भी बता दिया. नो ह्यूरिस्टिक्स, दैट मीन्स कि कंप्यूटर्स कैन नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस. पिछले किसी भी एक्सपीरियंस से वो कोई भी चीज़ें नहीं सीख सकता. जैसे इंसान क्या होता है, पिछली गलतियों से सीखता है. पहले जिस गलती की है, नेक्स्ट टाइम सोचता है वो गलती ना करूं. बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है, वो पास्ट से कुछ भी चीज़ें नहीं सीख सकता है. सो दीज आर सम वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथेस ऑफ द कंप्यूटर. आई होप कि सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है. थैंक यू. सो इट्स टाइम टू होमवर्क. So answer these questions. Question number 1, compare a tablet with laptop. Question number 2, give some examples where you see use of ICT in our daily lives. Question number 3, what are commonly used ICT tools? Question number 4, compare smartphone and tablet. Question number 5, what is IPO cycle? Define and explain through figure.